students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 11. And the name of your chapter number 11 is What is Cooking? Okay, so what is cooking? In this chapter, what topic we are going to cover? Let's see, concept overview. So the first topic which we are going to cover in this chapter is why do we cook food? Okay, then methods of cooking. Cooking utensils, fuels and stoves. Eating together in a family. Okay, now what are the curricular goals we are going to see in this chapter? Understand basic cooking methods and tools. Okay, so in this chapter we are going to see what are the basic methods which we use for the cooking purpose and what are the tools we use. Okay, now the second topic, identify raw and cooked food. Okay, we are also going to see the differentiation between raw food and cooked food. Okay, and the third point, learn about fireless cooking and safety while cooking. Okay, so come with me and see the chapter. The first topic is why do we cook food? हम खाना क्यों बनाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं. Some of the foods that we eat are eaten raw, but most of the food are cooked before eating. Okay, so my dear friends, some of the foods which we eat, okay, we can eat them in a raw form. Okay, but most of the food which we eat, or you can say which we see in our plate, they are cooked. Okay, now food items like cucumber, radish and carrot can be eaten raw, while lady finger, potato and meat need to be cooked. ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ फूड हम रॉ खाते हैं, पर बाकी के मैक्सिमम खाना जो हमारे प्लेट में होता है वो पका हुआ होता है. तो देखिए, खाने में हम लोग सैलेड खाते हैं, तो सैलेड हम रॉ खा सकते हैं, बस उनको धोइए, काटिए और खा लीजिए. लेकिन जो बाकी जो हमारे खानों में सब्जियां होती हैं, सीरियल्स होती हैं, या फिर अगर हम मीट खा रहे हैं, तो वी हैव टू कुक देम, हमें उनको पकाना पड़ेगा. तो सैलेड में जैसा कुकुम्बर, रेडिश या कैरेट खाते हो, तो आप इसको ऐसे रॉ फॉर्म में खा सकते हो. लेकिन जो सब्जी, आप मान लीजिए आप लेडी फिंगर की सब्जी खा रहे हो, पोटैटो की खा रहे हो, तो क्या आप ऐसे ही खा सकते हो उसको? यू हैव टू कुक देम. ठीक है, आप मीट को भी ऐसे नहीं खा सकते, यू हैव टू कुक देम. ओके, नाउ cooking makes the food soft, tasty and easy to chew and digest. Cooking also kills the germs in the food. Some food items last longer when they are cooked. Remember that food should never be overcooked or undercooked. ठीक है, कुकिंग जरूरी क्यों है? कि कुकिंग हमारे खाने को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, टेस्टी और डिलीशियस बनाती है. ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि खाना ना बहुत ज्यादा नहीं पकाना है या कम नहीं पकाना है, बैलेंस फॉर्म में पका होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस फॉर्म में होगा तो जो भी जर्म्स उसमें प्रेजेंट होंगे खाने में वो मर जाएंगे, एंड दैट food will be suitable for our eating. Okay, now my dear student, we are going to see the methods of cooking. So what are the methods which we use for the cooking purpose? Okay, see, people use different methods to cook food. Okay, these are as follow. Okay, means we human beings use different types of method for our cooking food. So the first method which we follow or which we use for our cooking food is boiling. ठीक है, हम खाना बॉईल करते हैं. ठीक है, मतलब खाना बॉईल करने का मतलब क्या है? हम पानी पहले बॉईल करेंगे तभी तो खाना पकाएंगे. कुकिंग द फूड आइटम इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग. तो बॉइलिंग का मतलब क्या है? उबलते हुए पानी में जब आप अपने खाने को उबालते हो पहले. ठीक है, राइस, pulses and some vegetables are cooked by boiling. Milk is also boiled but without adding water. देखिए, आप चावल पकाते हो, हमारे घरों में दाल बनती है या कोई भी सब्जियां बनती है, तो पहले वो बॉईल की जाती हैं, उसके बाद ही वो बनती है. मीन्स जब आप पकाते हो ना उसको, तो वो पहले बॉईल होती हैं, बॉईल होने के बाद वो सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, मिल्क भी हम लोग क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, लेकिन उसमें बिना पानी मिलाए. ठीक है, बाकी सब में वी एड वाटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड व्हिच वी यूज व्हाइल कुकिंग आवर फूड, दैट इज स्टीमिंग. स्टीमिंग का मतलब क्या है? देखिए, कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग. ठीक है, भाप की मदद से जो खाना पकता है उसको स्टीमिंग कहा जाता है. ठीक है, सम फूड आइटम्स लाइक ढोकलास, इडलीज एंड मोमोज आर कुक्ड बाय पुटिंग फूड अंडर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्टीम. कुछ फूड आइटम्स माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बॉइलिंग मेथड के थ्रू नहीं पका सकते. वी हैव टू स्टीम देम, हमें उनको भाप के जरिए बनाना होता है. जैसे हमारा इडली है, ठीक है, ढोकला है और मोमोज हैं. ठीक है, ये सब स्टीमिंग मेथड से बनते हैं. ठीक है, then let's see the truth bank. Early man come to know about cooking accidentally. When raw meat fell in water, they found it tastier and easy to chew. Early man को देखिए,
अर्ली मैन को खाना पका के खाने का कोई आइडिया नहीं था, वो खाना कच्चा खाते थे, ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए या एनिमल्स खाए, दे ईट रॉ, एवरीथिंग रॉ, ओके। तो अर्ली मैन ने अचानक से खाना पकाने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ऐसा माना जाता है कि मे बी जब वो खाना खा रहे हो, ठीक है, उनका खाना गलती से आग में गिर गया हो और वो पक गया हो, तो जब उन्होंने उस खाना को खाया तो वो ज्यादा टेस्टी लगा उन्हें, ठीक है। चलिए, नाउ द थर्ड मेथड व्हिच वी ह्यूमन बीइंग्स फॉलो फॉर आवर कुकिंग फूड, दैट इज बेकिंग। बेकिंग है, बेकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, कुकिंग द फूड आइटम्स विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट इज कॉल्ड बेकिंग। बेकिंग का मतलब ये होता है बच्चों, हम लोग जब कोई भी खाना बिना पानी ऐड किए या कोई भी लिक्विड ऐड किए या फिर बिना फैट ऐड किए बनाते हैं, यानी सूखे फॉर्म में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है बेकिंग। ब्रेड, बिस्किट एंड केक आर मेड बाय बेकिंग। तो कौन कौन से फूड आइटम है जो हम बेकिंग मेथड से बनाते हैं, हमारा ब्रेड, बिस्किट और केक है, ओके। सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर, बेकिंग इन ओवन, ओके। Now the next method of our cooking food is grilling and roasting. ठीक है, grilling और roasting. Now what is the meaning of grilling and roasting? Let's see. Meat and some vegetables are sometimes cooked over direct heat. ठीक है, कभी कभी जो मीट या कुछ वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनको हम लोग डायरेक्ट हीट पे रख देते हैं, ठीक है। मींस कुछ भी हम एक बर्नर लेते हैं, उस बर्नर के नीचे से डायरेक्ट हीट सप्लाई होती है, ठीक है, तो उस पे क्या करते हैं, ग्रिल करते हैं, ओके। यू कैन सी दिस इज द मेथड ऑफ ग्रिलिंग, ओके। Now the next method of cooking food is frying. Okay, so frying क्या है? Let's see. Okay, our next method of cooking is frying. Now what is the meaning of frying? Let's see. Frying. In this method, food is cooked in oil. Frying is done in the three ways. देखिए, फ्राइंग का मतलब होता है इसमें खाना हम लोग ऑयल में बनाते हैं, जैसे सारे खाने हम लोग ऑयल में बनाते हैं, लेकिन इसमें ऑयल में खाने को फ्राई किया जाता है, इसमें ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फ्राइंग तरीके से खाना बनाने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हैं ये देखिए। तो सबसे पहला है शैलो फ्राइंग, ओके। सो द फर्स्ट वे ऑफ यू कैन से द फर्स्ट मेथड ऑफ कुकिंग फूड व्हाइल यूजिंग फ्राइंग मेथड, दैट इज शैलो फ्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैलो फ्राइंग? लेट्स सी। Tikkis and parathas are cooked by shallow frying in a pan using little oil, ठीक है। देखिए, शैलो फ्राइंग का मतलब होता है बच्चों, इसमें ना आप बहुत ज्यादा ना ऑयल यूज करते हो ना कम ऑयल यूज करते हो, आप मीडियम साइज पे ऑयल का यूज करते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऑयल में कुक करो ना बहुत कम, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे जब आप कुकिंग करते हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है शैलो फ्राइंग। जैसे हमारी टिक्कीज और पराठास होते हैं, ठीक है, इसमें हम ऑयल तो यूज करते हैं लेकिन ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज आवर शैलो फ्राइंग। नाउ what is the meaning of stir frying? Stir frying का क्या मतलब होता है? देखिए, चाउमीन is cooked this way on a high flame using very little oil, ठीक है। चाउमीन बहुत फेमस है, ठीक है। हम लोग चाउमीन जो है ना, चाउमीन बनाते हैं हाई फ्लेम में और इसमें बहुत कम ऑयल का यूज होता है, ठीक है। तो जिस भी खाने में बहुत कम मीन्स जिस फ्राइंग मेथड के जरिए खाना बनाने में ऑयल बहुत कम यूज होता है और हाई फ्लेम पे यूज होता है, मीन्स हाई फ्लेम पे बनता है, उसको हम स्टर फ्राइंग कहते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे डीप फ्राइंग की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप फ्राइंग? लेट्स सी। समोसास एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग, दे आर फ्राइड बाय कंप्लीटली डिपिंग देम इन हॉट ऑयल, ठीक है। तो देखिए, डीप फ्राइंग का मतलब होता है जो भी आप बना रहे हो उसको आपने पूरा का पूरा ऑयल में डाल दिया है, ठीक है। ऑयल में डालने के बाद आप उसको कुक कर रहे हो, जैसे हमारे समोसास और हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं, ठीक है। सो दिस आर द थ्री मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड व्हाइल फ्राइंग, ओके। Now cooking utensils. Till now we have seen the different methods of cooking food. Now we are going to see about those utensils which we use while cooking food. Okay. So cooking utensils. See, a variety of utensils are used in the kitchen. They differ in size and they differ in shape and size and are made of utensils like steel, iron, aluminium, glass, etc. ठीक है। हम लोग खाना बनाने के लिए ना बहुत तरीके के यूटेंसिल्स का यूज करते हैं, ठीक है, बर्तन का यूज करते हैं। वो बर्तन अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं और वो बने होते हैं आपके स्टील के, आयरन के, एल्यूमिनियम के या फिर कभी कभी ग्लास के भी बने होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कौन कौन से हमारे डिफरेंट यूटेंसिल के आइटम्स हैं विच वी यूज फॉर कुकिंग आवर फूड। दिस इज कॉल्ड स्पैचुला, ठीक है, स्पैचुला का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्राइंग पैन, दिस इज वॉक एंड दिस इज प्रेशर कुकर, ठीक है। स्पैचुला का यूज करते हैं हम लोग चीजों सब्जियों को चलाने के लिए, ठीक है। देन फ्राइंग पैन का यूज करते हैं हम लोग, क्या फ्राइंग पैन का यूज करते हैं हम लोग रोटियां बनाने के लिए या फिर पराठे बनाने के लिए, ठीक है। वॉक का यूज करते हैं सब्जियां बनाने के लिए या फिर दाल को फ्राई करने के लिए। देन प्रेशर कुकर का यूज करते हैं दाल कुक करने के लिए या फिर चावल कुक करने के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ फ्यूल्स एंड स्टोव्स, ओके। सो खाना पकाने की मेथड्स तो हमने देख लिया, हमने बर्तन भी देख लिए, और बनाने के लिए हमें फ्यूल तो चाहिए, गैस स्टोव तो चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं
Food is cooked on different kinds of stove. Stoves run on fuel that produce heat. Okay, so we cook food on different types of stoves. Okay, and all these stoves run on fuel which produce heat. Okay, so the first type of stove which we use for cooking food is angethis. Okay, so angethis use coal as fuel. Okay, so when we cook food on angethi, okay, so angethi use coal as their fuel. Now the next type of gas stove is gas stove. Okay, gas stoves with 2, 3 or 4 burners use liquefied petroleum gas LPG as fuel. ठीक है, हम सबके घरों में गैस है, तो गैस स्टोव्स होते हैं, तो उन गैस स्टोव्स में 2 बर्नर होगा, 3 बर्नर होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है 4 या 6 बर्नर्स भी होते हैं. ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, खाने को कुक करते हैं. और जो गैस स्टोव होते हैं ना, ये एलपीजी गैस को यूज करते हैं अपने फ्यूल के तौर पे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट fuel, or you can say next stove which we use for our cooking food is chulhas and tandoors. Okay, तो chulhas and tandoors use wood or charcoal as a fuel. अगर आप अपना खाना चूल्हे पर या तंदूर पे बना रहे हो, तो वो क्या करते हैं, वो लकड़ी को या फिर कोयले को, चारकोल को वो यूज करते हैं अपने फ्यूल के लिए. कैरोसिन स्टोव्स यूज कैरोसिन ऑयल एज फ्यूल. बहुत सारे कैरोसिन स्टोव्स भी होते हैं, पहले होते थे. ठीक है, कैरोसिन स्टोव्स ना कैरोसिन फ्यूल का यूज करते हैं, ये कैरोसिन ऑयल होता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी एंड ग्रिलर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, देखिए ये सब ना अभी तक फ्यूल पे चल रहा है. कोई कोल पे चल रहा है, कोई एलपीजी गैस पे है, कोई आपका वुड या चारकोल पे है, तो कोई ऑयल पे चल रहा है. कुछ हमारे गैस स्टोव्स होते हैं विच कंप्लीटली रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन है, ओटीजी और ग्रिलर्स होते हैं. ठीक है, दे नीड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली. अब हमने खाना बना लिया, खाना पकाने के तरीके देख लिए, बर्तन देख लिए, गैस स्टोव्स भी देख लिए. चलिए, लेकिन अब सबसे जरूरी ये है कि वी हैव टू ईट टुगेदर एज अ फैमिली मेंबर. ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए, we should eat food together in our family. It gives a sense of togetherness. हम लोगों को कम से कम देखिए बच्चों, अगर आप सारे टाइम का खाना एक साथ नहीं खा सकते, बट मेक श्योर कि रात का डिनर आप सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ कीजिए. जब आप एक साथ खाना खाते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यस वी आर रियली टुगेदर. ओके, इन फैमिलीज मोस्ट मेंबर्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. फैमिली में क्या होता है, सारे लोग मतलब मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स एक जैसा खाना खाते हैं. ठीक है, sometimes separate food is cooked for some members of family like old people, sick people and babies. कभी कभी क्या होता है, एक ही घर में कई तरीके का खाना बनता है. ओल्ड पीपल के लिए अलग होता है, यंगस्टर्स के लिए अलग होता है, और बेबी के लिए बेबी फूड बनता है. ठीक है, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, फैमिली ईटिंग together. Okay, so this is all about the chapter. Now come with me, let's see the wrap it up of the chapter. Cooking makes the food tasty, soft and easy to chew and digest. That's why we need cooking food. Food should never be overcooked or undercooked. Okay, so always maintain a balance between cooking food. Okay, the different methods of cooking are, so what are the different types of methods of cooking through which we cook our food? They are boiling, steaming, frying, roasting, baking and grilling. Okay, and the last, all members of a family may or may not eat the same food. Okay, so here my dear student, our chapter ends. Now just go thoroughly through this chapter and complete the self-evaluation portion of the chapter. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.